ठीक है, मैं अभी ये देख के ना, अभी थोड़ा ब्रेक दूंगा ना, उस टाइम देख के मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन मुझे बस ये ना थोड़ा सा क्लियर कर दो कि कितने तक पूछना है ना। हाँ सर 130 अगर सर अगर अभी एमसीक्यू पहले नहीं हुई है तो आप इस 135 क्वेश्चन के ऊपर वाले तक पूछ लेना। 135 स्लाइड्स है ना? हाँ उसके सर ऊपर 134 तक जो एमसीक्यू 2 में दे सकते हो, और अभी अगर इसको समझा दे तो फिर इसको इंक्लूड कर सकते हैं MCQ 2। अच्छा, तुम्हारा कहना है कि यहाँ से नीचे ना दें, है ना? हाँ सर। ठीक है, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से 200। कुछ लोगों ने एमसी जो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे देखे भी नहीं है कि उसका आंसर क्या है, बस ABCD पता कर लिया किसी से, बस लगा दिया। कैसे करोगे तो कैसे होगा फिर, इसीलिए इस तरह से उसको रिसफल किया गया। ओके, सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली द प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड? देन आई विल स्टार्ट द सेक्शन ऑफ सॉलिड। बोलेगा कोई? Sir, images of a solid figure on a reference plane. And which view? Top view, front view, side view? Top view is on the horizontal plane, front view is on the vertical plane, and side view in the profile plane. Okay, so now in this section we will discuss about the orthographic view. It is a one kind of solid, may contain a number of dotted lines. These lines indicate the presence of hidden details which may be behind or somewhere in the middle of the object. The intersection of the object shape becomes difficult with the increasing number of such lines. As a remedy, it becomes obligatory to draw sectional view for a better and easier interpretation of the internal structure of the object. So in this section, we will understand about how to cut the section and what is the exactly internal structure of the object, and what is the exactly development, how we can make it, and so fold and unfold. In the unfold condition, so how we can make the product or make the object as looking in the 3D. So I'm taking so this is a rubber, and I am considering it is wrapped by a paper like this. Okay, wrapped by the paper. When you will open to this, then it is the initial condition of the paper. So this is the part of the development, and intersection, two part are joint. Suppose this part and this part are joint, and how it looks like in the open or directly we can see the development, so that we can look from the intersection point. So now first we will discuss about the section of solid. And in the second section, development and intersection. So what is the section of solid and object?
is cutted by some imaginary cutting plane to understand the internal details of the object. So the action of cutting is called the sectioning. A solid and the plane is cutting is called the section plane. So here you can look, this is one of the object, and the observer is standing at this position, and this is the reference line. This is the reference line. So it is the front view of the object and it is the top view of object. So the observer, or we are standing at this position, we are looking at this object from this position, and we cut the object, this object from this line. Okay. So this is the section plane in front view. So this is the section plane. And this is the section line, and this portion is removed. After removing this portion, we can look the internal structure of this object. So two types of condition to cutting action means action plane are recommended. So two types of condition are very, very important for the section of solid. One is the section plane, this plane. Okay, this plane is perpendicular to vertical plane and inclined to horizontal plane. That is familiar by the name of auxiliary inclined plane, or that is the AIP. So it is the short form of this. So it is very, very important to remember the plane is perpendicular to BP and inclined to HP. So I want to just show you the exactly what is the situation. It is visible or not? Yes, sir. Yes. Okay. So it is the horizontal plane and it is the vertical plane. Now we are talking about the perpendicular to BP. So how it looks like this or this? Yes, sir. This, Like this. it will be the right situation. Yes, sir. So this is our vertical and this is horizontal, and now it is telling the condition. First condition is perpendicular to BP. Perpendicular to BP in this condition, and the next condition is inclined to HP. So inclined to HP, how it looks like. So we can move only this direction like this. Okay. So this, like this. But it always perpendicular to this. Okay. So this is the perpendicular direction, only inclined to our horizontal plane. So in this type of condition are familiar by the name of auxiliary inclined plane, AIP. So directly this kind of problem you will look in some of the example. So directly you will understand exactly what is the condition of that. It is the problem related to AIP or related to the other one. And the second condition is perpendicular to plane, perpendicular to HP and inclined to BP. So in this condition, it will be like this. This is perpendicular to HP and BP, how like this, in this movement, 30 degree, 40 degree, so many angles that you can define or that already given in the problem. So in this condition, we can look here, we are cutting from the top. So observer is standing at this position, but in the first condition of the AIP, the observer at the top position is standing here, and it is just opposite of this. So the sectioning plane is this, and we are removing the small part. So after the removing the small part, we can look the internal structure of this object, or exactly it is the hollow, or it is the completely solid, or other different structure inside this object. So these are the important.
So exactly what is the what we can remember from the section of solid after launching a section plane either in FB or in front view or in top view. The part towards observer is assumed to be removed. So this part is removed. This part is removed where the observer is standing in front of that one. As far as possible, the small part is assumed to be removed. Yes, of course, we would like to remove only the small part. If we are removing the bigger part, then we cannot consider the all dimension of the object. So in these conditions, if we are removing the small part, then it will be easier to show the all things. So this is the view. This is we are standing at this location, and this is the top view, and this is the front view, and this is the sectional top view. Now we are making a cone, like considering an object like the cone. This is the cone, and we are sectioning at a specific angle, and this is the reference plane. We are sectioning at a specific angle, like considering this is the 45 degree, and we are sectioning and this by this line, and this portion is removed. This portion is removed. Then how the shape is looking like, that is the important for the section of solid, where that dimension we will draw on the paper like this. When we are looking from the top view, the section plane, the cutting section plane, then it will looks like this. So it is not the actual shape of the cut area, this one. So this is completely different than that. So this is the shape of section, and this is the section line inclined to 45 degree of to the XY plane. Okay, so you have to make the all things, the true shape, sectional top view, and some places it is important if the shape is complex, that time you have to make the side view as well. So that we will understand in the some of the example. So these some of the typical shapes as you understand in the previous lectures. So suppose this is the cone, and we are cutting from this sectional plane, then how it looks like, that we can look here. Okay, and similarly we are cutting the section from this place, and this is the section line, and this is the section plane. So how it is looking like, as you can look here. Similarly for the other, the shape will be different. When we are cutting the section from this position, the shape will be parabola. And when we are cutting the section from this position, then how it looks like, hyperbola. So similarly, we are cutting the cylinder. It provides the ellipse shape. And similarly for the other. So the development of solid surface, exactly what is the meaning of this? Assume object hollow and made up of thin sheet. Cut open it from one side. So as I discussed before, so remove the upper portion and unfold the sheet completely. Then the shape of that unfold sheet is called the development of the lateral surface. So you know about the cartoon or the box. This is the rubber. Yes. Okay, so we are wrapping from all sides, this side and like this, and one portion from this side and one portion from this side. When we will open to this
and this will be the surface. So it is the lateral surface that we will draw of the object. So where is the exactly application of this section of solid? These some of the important application: boiler, cell, chimney, pressure vessel, shovel, tray, box, and this is the can, keep, bucket, and other duct, and chimney, hopper. These are the application of this. Without the dimensioning, it is possible to create this kind of shape, or by the hit and trial method. How we can draw these shapes? The dimensioning is important or not? Or the specific angle is? Yes, sir, important. So both are important, dimension and angle. So on that basis, we can draw with a proper dimension. So what is our objective in this topic? To learn method of development of surface of different solid, their section and system. So some of the things we have to remember. Development is different drawing than the projection. So here we work on the area by which we can create a specific object, like the cone, prism, and rectangular kind of shape. So like the rubber or box, so that we can make by this process. So area is important in this condition. So we will draw in the 2D. Hence all dimension of it must be true dimension, not the imaginary. As it is representing shape of an unfold sheet, no as can remain hidden. So we can make the simple shape, like the box is like this, that we can open easily. That kind of shapes are possible. If the shape is complicated, so like I am taking this pencil and wrapping to this. In this condition, we cannot show you the top view and the bottom view. So these two need to avoid, the top view and bottom view, or the base view of this. Top and base, both we cannot show, only we can show the wrapped one, the lateral one. Sir, how do we unfold the sphere? No, it is the initial. Suppose you want to make the specific kind of duct, okay? So it is the part of development of surface. So I am taking the paper, okay, and wrapping to this. Actually, you are all are belonging from the metallurgy. So have you any idea about the mold? How to create the mold? Now no, because of you are in first year. But later you will understand about the casting, in which the mold is used. So that is very similar to that. So we take the paper, wrap to this. So just we want to measure the dimension in reference of the area. So what is the exactly area? It is cover the surface. Then what is the area of this? And what is the side of this? What is this area and this area, like this. So we will calculate the all area of the all surfaces. How many surfaces? 1, 2, 3, 4 and other 2. So 6 surfaces in this rubber block. So that we can measure easily by the development of solid. Sir,
Yes. Sir, what about sphere? How do we wrap this sphere, sir? Yes, actually that we cut at the specific angle. That we cut at the specific angle. Actually, you are talking about the round one. Yes, sir. Round one. So we will cut from one plane and unfold it. Okay, sir. That we will discuss in detail in the example. Okay. So these are the important method. So four kind of method. One is the parallel line method, radial line method, triangulation method, and approximation method. So parallel line method is mainly used for the prism and cylinder, not for the other, in which all as generators of lateral surface are parallel in each other. As I am talking about the rectangle block, this block, when we are folding to this and unfolding to this, and it is the lateral surface, completely open. This kind of shape can be made by the parallel line method. The radial line method, as like the cone. You know about the cone. How was the shape of this? Cone shape is like this. I am removing the upper portion. So the shape of cone is like this. Okay, so we are removing this portion. Then when we will unfold to this, then how it looks like this. So now directly we can remove this portion. So the cone like this, we can connect this edge to this edge, and it will be the cone. And when we will open like this, so how to generate the cone shape? That will be follow this line method, the radial line method. Other is the triangulation method. So we can follow for these kind of shape, the pyramid and cones. And the triangulation method only possible for the transition piece and oblique objects. Approximation method, obviously it is clear by the name. It is just the approximation. So the double surface shapes, the double wrapped one, that we can just approximation, not the exactly the same. The development of lateral surface of different solid. So here we will look some of the example for the cylinder. This is the cylinder. This is the top base, top surface, and it is the bottom surface, and this is the dimension of this. So it is the height h, and d is the diameter of cylinder. So how we can draw it? Now we are we are cutting from this position or this position. So it's on you exactly where you want to cut. And suppose I am cutting from this and unfolding to this direction. So this is what is this length? Anyone can let me know what is this length? If this Circumference of this. Circumference of triangle. This is the diameter, then it will be pi d. Okay, so it will be pi d. So it is the second is the prism. So now how many number of rectangles in this? How many number of rectangles? 5? 5. Yes, Yes. sir, 5. So you can unfold 5. same as the previous one. Okay. So how many number of rectangles will be made? 5. Okay. Now we are considering this is the length is s and height is h. So the edge of the base. So directly we can measure the area of these sections from the unfold sheet.
So similarly, we can follow for the cone. So how we can open this? Like we are cutting from this position. So now I am considering this and unfolding to this. And it will be O, and we are unfolding to this. So just opening to this directly. So if it is the length, and so how we can calculate the angle by this equation, theta upon 360 equal to radius upon length. So it is the slant height, radius upon slant height. Similarly, we can follow for the pyramid because of it is also has the center of point for this. So similarly, we will draw for this unfold of all equal lengths. Samruddhi, can you take the attendance? Yes, sir. So similarly, you can also look for the tetrahedral shape, and for the cube, it is very simple shape that we can draw by the direct parallel method. So for the first term, what is the first? Sir, you are not sharing your slides. The Sir. screen is not visible. Slide is not a sharing. Slide is not sharing. Okay, I need to. Okay. Now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. No problem. So what is the shape of frustum? How we can get the frustum? By cutting of By cone. cutting cone Parallel to the base. base. Yes. From the specific distance. Okay. So how we can get the area of this? So we will extend to this. Okay. So it is the imaginary area. And this, suppose this is the L and this is the L1. Similarly, we will open or unfold to this shape, cone. This is the cone, and when we are removing this area, so it is the frustum of cone. The angle, so we will follow the same equation and formula, but you have to draw this point. So we cannot show for the frustum of cone as the center. So we will draw here. But without assumption of the center, it is not possible to draw the frustum of cone.
the development of system of a square pyramid. Similarly, we can also follow the same procedure for this. So this is the L distance and this is the L1 length. And now we will follow the same procedure. So we will consider a point, and then this portion is divided into the 4 parts with the same length, this length. It is the base side. Similarly, we will draw this portion like this, and similarly we need to draw the same at the lowest portion, the base portion. So it looks like this. So now the problem will start. Okay, now we will look the first problem. A pentagonal prism, 30 mm base side and 50 mm axis, is standing on the horizontal plane on its base, whose one side is perpendicular to the vertical plane. It is cut by a section plane 45 degree inclined to horizontal plane through midpoint of axis. Now they want in this question to draw the front view and sectional top view, sectional side view. So 3 things they want. Also draw the true shape of the section and development of the surface of the remaining solid. So how we can draw? So you have to follow this step for the sectional view. So now this is the reference XY plane. Reference plane, and now this problem is related to which? AIP or ADP? Anyone can let me know? What was the condition there? The condition was there perpendicular to HP and inclined to BP. Or perpendicular to BP or inclined to HP. Anyone remember this? So AIP. So this problem is related to the AIP. Okay. So now we are first of all we are making the pentagonal prism. So this is the top view. So below the reference line. Now we are noting by the ABCD. So why we put like this? Why we not the straight one take? Anyone know what was the reason? Why we do not take like this shape? It was also possible like this. One side is I will draw. What? Sir, one side we need to draw perpendicular to VP. That's all. No, it is also possible like this. This was not possible. It was possible or not? But why we are trying to draw this kind of shape, like a specific this angle? Why we are drawing? Because of in the front view we want to draw less number of the solid lines. So in this condition, how this line is cutting directly to this, okay, and this is intersecting to this, and this is to this. So only the three lines need to draw
in the front view. Due to that reason, we always keep at a specific angle. So it will be straight. So this CD will be straight, and now we can only need to draw the 1 line and 2 line and 3 line. This one, 3 line. So it is the sectioning. We are sectioning from this position, and when we are sectioning in this position, why we are sectioning from here? Because of it is mentioned inclined to HP 45 degree. So it is the HP and it is the BP. So we are inclined to HP. So it is the 45 degree. Just a second. Okay. So this is the front view. Okay. So this is the front view and this is the top view. And now we are sectioning at the 45 degree, and this portion we will remove, the upper portion, and we are standing at this location. We are looking from this position. So how the top view it looks like, that will be the sectional top view, as they ask here. The sectional top view, front view. Front view is this, and sectional top view that we want to draw, and sectional side view. So we are projecting this. This is the A point, so it is the A dash, and both B and E at this place. When we are showing these points on the from the front view, so C and D point. Okay. Now we want to show the sectional view for the side view. So now this is, we are looking from the front view, then it looks like this. When we are looking from the side view, suppose we are looking from, we are standing at this position. So this is at the 45 degree and we are standing here. Then how it looks like? So we are extending the same line, distance from here, and extending this line, these points. So how many points? 1, 2, 3, 4, and 5. At 45 degree, we will extend to this line until this position. So this is our end of the length, that is the 50 mm axis. And similarly, we will cut intersect point from this. How many intersect point after the sectioning point? So अब हम यहां से क्या करेंगे ना, इसको कट करेंगे. देखो A1 पॉइंट से B1, E and C और D से. So we are extending this line towards this direction. So we are intersecting at this point. So just we follow the same point. This is intersecting at this point, then you have to make this point. This point B and E. B and E. A point at this point. So just we want to show the exactly the how the side view is looks like. Okay. So it is the E point and B, A, C, D. So A, B, C, D, E. Similarly like this. And we will connect to all each other and draw by the section view.
like this, these lines. So when we are looking from the side view, the section of this, so it looks like this. So this is the sectional view, and this is the top view. So it is different than this one, top view. This is not the same dimension. Now we will draw the true shape of this. Similarly, we will extend. First, we will make the other reference plane. It is the secondary reference plane, this one. So no specific distance, what distance we will choose. It's on you. So just you have to remember, no need to cut this point. So above to this point, you may draw a reference plane. It will be the secondary reference plane. And now you extended these lines, imaginary lines from these points, and you will put the points first this point at this place. So how much will be distance between this and this? What is the distance between this point to this point? It is a specific distance, or you need to draw on the basis of what is exactly the sectional view it looks like at this point. So you are looking from the top view, you are standing now in this condition here, and you are looking from this. If you are standing here, and how the sectional view is looking like, the top view, like this one. This is from the side, and now we want to draw the true shape. So now you will look from this side. So now you are standing at this place and draw the same dimension at this place. All these points intersect at A, B, E, and CD. So how you will measure this distance? कुछ समझ में आ रहा है इसमें कि नहीं आ रहा है? सर उतना बढ़िया से क्लिक नहीं कर पा रहा है सर जो सेकंड डिफरेंस लाइन है सर, हाँ। उसमें जो डायग्राम बन रहा है वो जो कट होने के बाद जो व्यू जो है ऊपर का, उसके लिए है ना? हाँ, ये देखो, ये जो तुम्हारा है ना ABCDE है ना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, और इस पोर्शन को हमने रिमूव कर दिया है ना, तब हमारा ये शेप बन रहा है इस तरह का साइड व्यू से देखने पे। जब हम टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये शेप बन रहा है इस तरह का। तो ये जो सेक्शनल व्यू है ना, टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो हमें कोई एंगल तो पता नहीं चलेगा इसमें, है ना, वो तो एक डायरेक्टली जो शेप होगी ना वही तो दिखाई देगी। यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू हम देख रहे हैं उसको, तो जो आउटर लाइन होगी वही तो दिखाई देगी इसमें, ये वाली आउटर लाइन, और उसका जो सेक्शनल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा वो देखेगा, जो हम उसको सेक्शनाइज्ड कर रहे हैं, जो इसमें दिखा रहे हैं, मतलब इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे है ना। तो ये तो आपका हो गया टॉप व्यू, जब आप यहां स्टैंड कर रहे हैं। अब हमें क्या चाहिए? ट्रू शेप चाहिए। ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन। तो ट्रू शेप के लिए क्या है? ट्रू शेप विल बी डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट। सो यू विल स्टैंड एट दिस पोजीशन above this reference line. This is the secondary one. और देखो इसमें क्लियरली क्या बोला है कि 45 mm एंगल पे हमें क्या करना है? इंक्लाइंड करना है, जो सेक्शन प्लेन कट करना है।
तो हमने क्या किया कि इसको एट द 45 डिग्री ये एंगल कट किया। अब इसी के पैरेलल में हम ये एक्स वाई लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, x1 y1 लाइन। इट इज द सेकेंडरी, इट इज अवर द प्राइमरी, दैट इज द रेफरेंस प्लेन, इट इज द सेकेंडरी रेफरेंस प्लेन, है ना? ये समझ में आया? Yes, sir. Why we draw that perpendicular dotted line? दिस वन Yes, sir. नहीं, ये तो सेंटर लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, बीपी है, और ये एचपी है, ये आपका बीपी है। देखो पेंटागोनल जो प्रिज्म है उसका जो सेंटर लाइन होगा ना, जो सेंटर पॉइंट होगा ना, जैसे ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है, ये पेंटागन है, Yes, sir. है ना? अब इसका जो सेंटर पॉइंट है उसको शो किया है, सेंटर लाइन को केवल ड्रॉ किया है, जिससे आपको ये पता रहे कि इसका सेंटर हमारा कहां पे है, ठीक है? तो ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया और ये आपको एज ए सॉलिड लाइन, डार्क लाइन दिखा दिया, ठीक है? अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका साइड व्यू आपको मतलब कैसे दिखाई देगा, तो हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और इसको 45 डिग्री पे कट करके इस लाइन को जहां पे आपके पॉइंट इंटरसेक्ट हुए हैं, तो ए पे पॉइंट जो आपकी ये जो मतलब डार्क लाइन है ये कहां कहां इंटरसेक्ट किए हैं, ये आपके सेक्शनल लाइन को, सेक्शनल लाइन को कहां कहां, और या जो सेक्शनल प्लेन बनेगा। अब देखो मैं उससे 3D इमेज से दिखाता हूं, दैट विल बी इजियर। ये है प्रिज्म, लाइक दिस। अब यहां से क्या किया ना, हमने इसको रिमूव कर दिया, है ना? जब इस पोर्शन को रिमूव करेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, ये इसके साथ, अब ये पोर्शन दिखाई देगा आपको ऐसा, this section looks like this at the specific angle 45 डिग्री। अब इस सेक्शन को हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे साइड व्यू से, यदि हम इधर से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, तो उसी के लिए हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, सिमिलरली इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया। अब ये जो पॉइंट थे हमने इसको एक्सटेंड किया, ये हमें 45 डिग्री पे ही हमेशा इसको लाइन को ड्रॉ करना है, इसको एक्सटेंड करना है, और हमारी जो ये पॉइंट्स हैं अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो जो पॉइंट्स इसको एक्सटेंड करेंगे जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा उसको एक्सटेंड कर देंगे वर्टिकली, और उसके बाद जो पॉइंट हैं वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके पॉइंट्स, ये हमारा एक ब्लॉक है, तो ये जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी है, वो ये वाली होगी, यही होगी ना, सेम जो यहां पे है, और इट विल बी डिफर, No, sir, same. सेम होगी ना। अब देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इस वाली लाइन को कह रहे हैं, लेकिन अभी हम देखो इसमें पॉइंट क्या देख रहे हैं, अब हम पॉइंट देख रहे हैं इसको साइड व्यू से देख रहे हैं, ठीक है? अब साइड व्यू की कंडीशन में क्या होगा कि हमारी डिस्टेंस हो जाएगी ये वाली, तो ये जो डिस्टेंस होगी ना वो आपकी ये वाली हो जाएगी टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक। अब इसको साइड व्यू से देखो तो फिर कैसे दिखाई देगा, उसी सेक्शन को आपको
कट करते हुए कनेक्ट कर देना उन्हीं पॉइंट्स को। तो ये आपका ये सेक्शन व्यू हो गया। अब इसके लिए अब हमें बनाना है ट्रू शेप, और ट्रू शेप के लिए यदि हम यहां से देख रहे हैं, ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन, तो ये दिखेगा इस तरह का, ठीक है, लाइक द टॉप व्यू, है ना। और अब हम देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली शेप क्या है उस सेक्शन की, तो अब हमें स्टैंड करना पड़ेगा यहां से और कंसीडर करना पड़ेगा कि ये टॉप व्यू है और हमें ये पोर्शन को देखना है कि ये कैसा है, ठीक है। तो इसी लाइन को ये जो पॉइंट यहां पे कट किए हैं ना सेक्शनल प्लेन पे, तो उन्हीं को हमने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया तीनों पॉइंट को। पहले हम कहीं भी एक पॉइंट ये ले लेंगे, ये पॉइंट, और सिमिलरली कौन सा पॉइंट लेंगे यहां पे, नहीं 5 पॉइंट तो चाहिए, ये कितना हो गया, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हमारा जो इसमें डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस है, सी से डी तक का, सी और डी का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, केवल चेंज किस में होगा आपका, जो ये डायमेंशन होगी डी से ई और सी से बी वाली, यही वाली आपकी डायमेंशन चेंज होगी, क्योंकि जो ऊपर से आप एक स्पेसिफिक एंगल पे कट किए हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो डायमेंशन आएगी वो चेंज होगी। दैट वी वांट टू ड्रॉ हियर एंड दैट विल इंटरसेक्ट एट दीज पॉइंट्स। और ये लाइन आपकी तो सेम रहेगी। तो यहां पे सबसे पहले आप कैसे ड्रॉ करोगे इसको, ये एक कहीं पे ए पॉइंट मान लोगे और इसको क्या करोगे, एक्सटेंड कर दोगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये आपका कितना है, देखो जो बेस है वो कितना है 30 mm, तो 15 mm दिस एंड 15 mm दिस, ठीक है। ये 15 mm का लगा लिया, 15 mm का कट, ये वाला कर लोगे। ये लाइन यहाँ पे दिखानी नहीं है, इसमें बस केवल पॉइंट लगाना है आपको इसके परपेंडिकुलर में और इसके परपेंडिकुलर में, इस लाइन के परपेंडिकुलर में। तो ये पॉइंट मिल जाएगा आपको, ये पॉइंट मिल जाएगा, इसको ए आप मान लेंगे और इस पॉइंट से 15 mm इधर, 15 mm इधर, तो आपका सी पॉइंट मिल गया और आपका ये डी पॉइंट मिल गया। अब यू हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस इज द सेम वन, दिस वन। तो इस पॉइंट से हाफ इधर और हाफ इधर, तो ये बी पॉइंट मिल गया आपको और ये ई पॉइंट मिल गया। बस इन्हीं को मैच करा देना है, दैट विल बी द ट्रू शेप। ये कभी ये वाली आप लाइन मेजर कर सकते हो, यदि आपको एग्जैक्टली द एरिया इसका मतलब निकालना है तो ये लाइन मेजर कर सकते हो। इट विल बी डिफर देन दिस वन बिकॉज ऑफ इट इज एट द इंक्लाइन। कोई एक शेप हम टॉप से देख रहे हैं तो वो ऐसी कुछ दिखाई देगी, है ना, और उसको हम अब जब साइड व्यू से लिख रहे हैं और ये स्पेसिफिक एंगल पे है तो ये यहां से एक्सटेंड होगी, थोड़ा ऐसे होगी कुछ। ये तो टॉप व्यू वाला हो गया, टॉप व्यू, एंड ये हो गया आपका ट्रू शेप, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं सर? सर ए डैश से जो सेकंड रेफरेंस प्लेन है उसका ए का जो डिस्टेंस है सर वो उतना ही सर वो कितना रहेगा, लाइक वो उतना ही रहेगा जितना एक्चुअल जो अपना अच्छा एक बार और रिपीट करो, कहाँ पे पूछ रहे हो सर? जो सेकंड रेफरेंस प्लेन ए है और उसके नीचे एक ये जो तो उसका डिस्टेंस कितना हो गया पूछ रहे थे? देखो ये डिस्टेंस इतना होगा कि ये पॉइंट इस रेफरेंस प्लेन के नीचे ना हो।
मतलब सर x1 y1 लाइन के ऊपर जो एक हाँ। कोई सा भी पॉइंट ले लो और उसके हिसाब से कोई भी बाकी- पॉइंट ले लो, मतलब ये इसको इंटरसेक्ट ना करें, ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से नीचे ना हो। ओके ये आप 5 mm भी रख सकते हो, 10 mm भी रख सकते हो, 20 mm भी रख सकते हो, फिर आपके पेज की लिमिट पे है कि कितना बड़ा पेज है आपके पास, है ना, पेपर है, ठीक है। ओके सर। अब हम इसका शेप डेवलपमेंट करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ शेप कैसे होगा इसका, इंटायर सॉलिड का? ओके, ये हमने क्या किया है कि इसको ए पॉइंट से कट कर लिया, जो ये वाला पॉइंट है ना, है ना, एक पॉइंट लेजर। ओके, अब ये पॉइंट से हमने क्या किया, इसको कट किया, ठीक है। अब इसको अनफोल्ड करेंगे, इस पॉइंट को आप अपने एक ही जगह रखे रहिए, ये पॉइंट पे रख लिया, है ना। अब इसको ओपन कर रहे हैं इधर से, तो पहले ये आया, सेम डिस्टेंस जो ये ए है ना, ए टू बी, सेम डिस्टेंस हमारी यहां से यहां तक है, बी टू सी, बी टू सी, सी टू डी, ई एफ, सिमिलरली, है ना। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने यहां से कट किया है तो लास्ट पॉइंट ए ही होगा जब हमारे टोटल सेक्शन आ पाएंगे। तो हाउ मेनी सेक्शंस आर हियर? 5 sections are here. So here we can also calculate the same sections, 1, 2, 3, 4 and 5. The distance will be same. It will not change here. You will extend these lines, 1, 2 and these 3 lines, okay, and will point out the same like this. So this is our A point and A is here from this point. So it is the side view and it is the top view. So now the A point is here, A point is here. B point is at this line. So we are showing the B point is this line, and similarly E point this line. So we are also note down the E point at this location. C and D. So it will be the C and D, and we will connect to all and complete the line in a block. ये कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या है ना, यहां से पेपर को फोल्ड कर रहे थे, ठीक है, तो इस लाइन को भी आप ड्रॉ कर दोगे। ये हो गया। इस तरह से जैसे आप पेपर को कट करते हो और यहां पे इस जगह एड्ज देते हो तो आपका एक पेंटागोनल प्रिज्म बनेगा। और ये जो ये वाले में, इस वाले कंडीशन में, ठीक है, जो हमारा ये रेफरेंस प्लेन है और ए टू ए, इस वाले में प्रिज्म बनेगा। और जो हमारा सेक्शनल व्यू 45 एंगल पे जो हमने कट किया है, तो जब उसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो ये 45 एंगल के ड्रॉ की शेप डेवलप होगी। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। Sir, how we get that points that the ABCD A dash, A double dash, B double dash, and Yes. C double dash. अब देखो हमें क्या है ना, डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सॉलिड बनाना है ना, तो उसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम जो सेक्शनिंग कर रहे हैं, जो हम अपना ये पॉइंट नोटिंग कर रहे हैं, तो इनको हम एबीसीडी से कर रहे हैं और दीज आर द इमेजिनरी वन, प्रोजेक्टिंग वन, है ना। तो ये वाला जो है इसको हम सेम पॉइंट को कैपिटल से लिख रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। दिस ए एंड दिस पॉइंट ए इज द सेम। एनी अदर डिफिकल्टी? अभी क्लियर हो जाएगा, फिर बाद में आगे वाली प्रॉब्लम में फिर जब थोड़ी इमेज कॉम्प्लेक्स इमेज होंगी तो उनमें दिक्कत होगी, इसलिए अभी यहाँ पे इस वाले में समझ लो तो इजी होगा अगले वाले में। I think no. So we are moving to the another example.
So now we are trying to draw a cone 50 mm base diameter and 70 mm axis is standing on its base on HP. Base on HP, what did you mean of this? What is this? It cut by a section plane 45 inclined to HP. कोई बताएगा ये क्या हो रहा है इसमें? कौन सा है? AIP है, ABP है? AIP. कैसे AIP है ये? सर AVP है. इसीलिए क्या है ना कि जो हमारी दो कंडीशन है ना उनको रिमेम्बर रखना है, बाद में उनसे ही आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, है ना। तो अब हम लोग ड्रॉ करेंगे, XY रेफरेंस प्लेन लेंगे, है ना, और उसका टॉप व्यू बनाओ और उसको मतलब एट सेक्शन में डिवाइड कर लो। क्या ये सो इज इट पॉसिबल टू डिवाइड इन मोर सेक्शन और इट विल बी द करेक्ट वन? व्हाई वी आर डिवाइडिंग इन ओनली 8 सेक्शन? इज इट आल्सो पॉसिबल टू 16, 12 एंड लाइक दिस? सो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ दैट? Curve will be smooth. Curve will be smooth and higher accuracy we obtain. So we will draw the front view of this. Now this is the O point, and these points are noted by the A, B, C, D, H. So A to H. We will extend to this point and intersect at the point O. So these are the base point. H and we intersect at the same point. And similarly, the F and D intersect at the same point here. So now we want to draw the side view of this. Draw projections. So this is the projection, sectional view, true shape of the section and development of the surface. Similarly, we will draw, and in this section, this front view draw from this direction. So we are standing from here and then we are looking exactly how it looks like. So C and G intersect at a point. Now we are looking from the side view. So which one will intersect at a point? A and E. AE. Due to that reason, the AE is looking at this position, and other position F and H, F and H, and G at this position. So this is understandable or not? Any difficulty in this? No, sir. Okay, fine. So now we are sectioning at 45 degree. And now we will remove this portion, the small portion, we will remove it. So how many places it is intersecting the section line? So it will intersect at this position, this position, this position, and this position. So how many positions? This line is already drawn by the center line. So we will extend to these lines. One is from here and other two from these. So one is already extended, second and third. Similarly, we will extend towards the horizontal plane parallel to that. And what is this distance that we can measure from this center line to this point? This distance and this distance will be same or different?
Same, sir. It will be same. Yes, Same. it will be same. If we will measure from this distance to this distance and this distance to this distance, it will be same or different? Different. Different. It's It will different. be different. Okay, that is important because of when you will draw the true shape, then that time you will stand at this position and you will look from here, this towards. Okay, so now later we will draw the secondary reference plane here, and we will stand from here and look the exactly the shape of this. That is the true shape. So now we are showing these points by the dimension of this. So it is the intersect because of only this is the sectional plane which is intersecting at the center line. So the center point to this distance that we are showing here and taking as the radius and drawing the curve. This one. Now similarly we are actually before we extended these lines towards the downward, and similarly we will extend these line the horizontally, these lines. So how many places it intersect? Actually now I want to show the sectional view of this, the side sectional view. So you have to show the all points. These, how many points? 8 points. And we will meet all these points. Similarly here, we will connect to that and sectional. Sir, how can you take this type of point from These points, yes. yes? यहाँ पे देखो, जो हमने क्या किया ना इसमें, ये हमने पहले फ्रंट व्यू बनाया और ये टॉप व्यू बना लिया, सेक्शनिंग किया, है ना। आप सेक्शनिंग में जो जहां जहां पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे थे उनको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया डाउनवर्ड और सिमिलरली एक्सटेंड कर दिया दिस डायरेक्शन में, ठीक है, पैरेलल टू द एचपी, ठीक है, वो पॉइंट को हमने एक्सटेंड कर दिया। अब हमारा देखो साइड व्यू हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं ना, यस सर। इट इज क्लियर, और सेक्शनल टॉप व्यू, ठीक है। अब देखो सेक्शनल साइड व्यू हमारा कहां कहां कट किया है, ये पॉइंट ये यहां दिख नहीं रहा है, ये इससे टच होगा, ठीक है, किससे टच होगा, इससे, इस पॉइंट से, ये यहां नहीं होगा, ये इस पे होगा, इस पॉइंट पे, ठीक है। यस अब देखो हमने क्या किया कि ये जो ए पॉइंट है, अब इसमें ए पॉइंट कहां पे है, इस लोकेशन पे है, ए डबल डैश, यही है ना, यस सर। ये ए पॉइंट यहां पे है, इस लोकेशन पे, इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये पॉइंट ले लिया। अब देखो ये जो हमारा बी पॉइंट है, बी और एच, है ना, अब देखो हमारा कितना शिफ्ट हो रहा है, सर बी डैश एंड एच डैश सेम पॉइंट पर लाई कर रहा है क्या? कौन सा, बी डैश और एच डैश ये सेम पॉइंट बी, हाँ बी डैश और एच डैश ये सेम पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये सेम पॉइंट पे है, ये यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना है, ये इस पॉइंट से इंटरसेक्ट मतलब हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइन हम ड्रॉ किए बस, है ना, Yes. इस डायरेक्शन में और ये वर्टिकल में। सिमिलरली दीज 2 पॉइंट्स जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, विदाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग फिर ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कैसे ड्रॉ करें इसको, इसीलिए इसको हम हॉरिजेंटली और वर्टिकली लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं और उससे हम अपने पोर्शन को निकाल रहे हैं। अब देखो जो ए पॉइंट है वो आपका ये आ गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ ऑलरेडी वी सो हियर दिस पॉइंट फ्रॉम, यहां देखो ये हमारा फ्रंट व्यू था और ये टॉप व्यू था, तो जब हमारा ये टॉप व्यू था, जब हम यहां से देख रहे थे तो हमारे ये पॉइंट सी एंड जी
इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, है ना, सी डैश जी डैश इस जगह पे है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि साइड व्यू, सेक्शनल साइड व्यू बना रहे हैं। सेक्शनल साइड व्यू में हम लोग इधर से देखेंगे, वी आर स्टैंडिंग एट दिस पोजीशन एंड वी आर लुकिंग फ्रॉम दिस। तो ए और ई दोनों एक जगह ही आएंगे, तो ए डबल डैश और ई डबल डैश, है ना। ऐसे ही करके जब यहां से हम लोग देख रहे हैं तो एच, ए, एफ और एच विल मीट एट ए पॉइंट, सेम पॉइंट, है ना। ऐसे ही करके सेम पॉइंट ये, और फिर ये बचा जी और एच। तो जी का हमारा एंड पे है और ये इस वाले एंड पे है, तो ये हमने जी को यहां दिखा दिया, इसको सी को यहां पे दिखा दिया, ठीक है, रेफरेंस लाइन में। अब इसी को हमें क्या है ना, जो हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अब देखो ये इंटरसेक्ट कहां किया, यहां कहीं किया। अब ये पॉइंट कौन सा है, point is बी और एच होगा, H dash, yeah. हाँ, बी डैश, बी डबल डैश और डी डबल डैश, तो हमने उनको यहां पे मार्क कर लिया, ठीक है। सिमिलरली इन पॉइंट को, अदर को किसको, जी बचा, जी और सी, जी सी बचा ना आपके पास, जी और सी, तो ये आपका आ गए जी और सी, ठीक है, जी और सी पॉइंट। उसके बाद आपके पास बचा कौन सा, डी एंड एफ, ये एफ एंड एच हो गया, तो बी एंड डी बचा, तो बी एंड डी यहां पे आ गए। और आपका लास्ट पॉइंट जो है वो ई, ए यहां पे लिया है, तो हमने ई को इस पॉइंट पे ले लिया और इनको सबको मिला दिया। सिमिलरली इसमें है, ऐसे ही उसको लाइन को इस तरफ देखना है हमें, टूवर्ड्स डाउनवर्ड, जहां पे हमने टॉप व्यू अपना ड्रॉ किया है। तो ये सेक्शनल व्यू इस तरह का दिखेगा। देखो इससे ये चीज क्लियरली दिख रही है। उसमें पेंटागोनल जो हमारा प्रिज्म था, उसमें हम ये क्लियरली नहीं समझ पा रहे थे कि सेम डिस्टेंस है या अलग है। अब देखो इसमें शेप में देखो, ये शेप आपकी एक्सटेंडेड दिख रही है और ये शेप थोड़ी अलग है ना। और ट्रू शेप देखेंगे तो वो और ही बड़ी होगी, ऐसे करके होगी कुछ। दैट वी विल ड्रॉ दिस डायरेक्शन। अब इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ओके, तो सेकेंडरी x1 y1 प्लेन को ड्रॉ करेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कुछ बोलना चाह रहा था क्या? नहीं। ओके, नाउ x1 y1 and we will extend the same point towards the secondary reference plane perpendicular to this, है ना। और ये जो सेकेंडरी प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर होगा हमेशा, जो आपका सेक्शनल प्लेन है, ठीक है। तो ये सेकेंडरी रेफरेंस प्लेन हो गया और ऑक्सिलरी रेफरेंस प्लेन। अब सेम पॉइंट we will keep point A at this location, और ये डिस्टेंस हमारी यहां से ही आएंगी, मतलब उसी पॉइंट को कट करना है। ये अब ये इसके और इसके बीच में जो दूरी होगी ना, वो हमारी ये वाली है, इसमें जो होगी, क्योंकि हम इसीलिए इसको साइड व्यू बनाए हैं कि इधर से हम देख सकें कि लोकेशन क्या है। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वही वाली हमारी ये होगी, ठीक है। ये वाली नहीं होगी, ये अलग है, इस वाली की लेंगे और उनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये इस तरह की शेप डेवलप होगी और इसको सेक्शनाइज करते हैं। हाँ, अभी कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ओके, अब हमें क्या दिखाना है, डेवलपमेंट ऑफ इंटायर सॉलिड। तो इंटायर सॉलिड के लिए क्या क्या करेंगे, हम एक पॉइंट O लेंगे और उसमें
हमारा क्या होगा कि जनरेट जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जनरेट लेंथ 70 mm, दिस 70 mm, दिस लेंथ। तो ये पॉइंट हमारा O हो गया और हमने O से A, तो ये पॉइंट हम मान लेंगे A, और इसको हम लोग क्या करेंगे कि ओपन करेंगे, अनफोल्ड करेंगे ऐसे करके। तो ये पॉइंट यहां पे आके मिल जाएगा आपको सेम, ठीक है। और कितने सेक्शन कर लिए इसमें, 8 सेक्शन, ये जो हमने यहां पे किए हुए थे। तो ये पॉइंट हो गया आपका O, ये पॉइंट ABCD हो गया, और लास्ट वाला आ जाएगा A, और ये आपका हो गया कंप्लीट थीटा एंगल, है ना। अब इसके पॉइंट कैसे मिलाएंगे, इस वाले से ट्रू शेप से मिलाएंगे, क्योंकि अब इसमें क्या है ना, हम ट्रू शेप से, हाँ कोई बोलना चाह रहा है कुछ, नहीं, ओके। ट्रू शेप से जो हमारी डिस्टेंस है ना, आप देखो यहां से इस पॉइंट से O से A की डिस्टेंस कितनी है, जो ये सेम डिस्टेंस है वही वाली ये होगी, तो हमने उसको वहां पे कट कर दिया, O से A वाली। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, या आगे चलें तब समझ में आएगा। देखो फिर O से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, कैसे पता चलेगा कि इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है O से B पॉइंट की। B पॉइंट कहीं यहां इंटरसेक्ट कर रहा है, O ये है, तो ये वाली डिस्टेंस मेजर करके हम इसको कट लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, कोई बताएगा। Similarly for the C point, this distance, और इनको कनेक्ट कर देंगे कर्व में। तो ये हमारा हो गया सेक्शनल साइड व्यू, और ये हमारा हो गया ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, एंड दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर सॉलिड। दिस इज द सेक्शन प्लेन। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, और कॉम्प्लेक्स से आगे बढ़ती जाएंगे उतनी डिफिकल्टी होगी। सर इसमें पहले आर्क का एंगल निकालेंगे ना वो फॉर्मूले से। हाँ, और कुल मिला के हमें ये टोटल ओपन करना है, इसको ओपन करना है। जो ये आपका वो है ना डिस्टेंस, है ना, जो भी है टोटल 360 को ओपन करना है। तो ये जो डिस्टेंस वाइज मेजर करना है, ना कि एंगल वाइज यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है जितनी भी, उसी को ही हम उसको ओपन करते जा रहे हैं। टोटल 8 नंबर ऑफ सेक्शन है। आप निकालना चाहो तो जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना, थीटा इक्वल टू R/L इंटू 360, है ना, उस फॉर्मूले से भी आप डायरेक्ट एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। एक लाइन कोई भी ड्रॉ करके उसके बाद उस एंगल को उतना बना के उसको सेक्शनाइज कर सकते हो। तो जितना भी एंगल आएगा डिवाइडेड बाई 8, और जो भी एंगल होगा वो आपका ये आ जाएगा, है ना। ठीक है ना, यस ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम क्या हुआ, 3:36, 3:36, okay. So now we will move in the other problem. A cone 40 mm diameter. ये बताओ ये किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइंग ऑन HP। इसको देखो प्रॉब्लम को और बताओ किससे रिलेटेड प्रॉब्लम है, AIP और AVP। AVP। और इसमें क्या ड्रॉ करना है, ये क्या समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन से, व्हाट इज दिस।
It is understandable or not? अब देखो, अब कुछ समझ में आया? क्या कह रहा है? लाइंग ऑन HP, which is parallel to vertical plane. पैरेलल टू वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, बताओ, ये पैरेलल टू वर्टिकल है? इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको रोटेट कर दे रहे हैं. That is the lying on HP. Just this point at this position and just rotate it. So A will reach at this position, A dash, HB here, CG and DF and E point, this. We are extending these lines and also from this direction. Here these are intersecting. On that basis, we will draw the diagonal view of this like this. And we are sectioning from this position. They do not mention the exactly at which distance from the horizontal plane. So you can cut from any place. Sectionize from this place or above from this place. It's on you. So after the sectionizing, you have to look exactly where it is intersecting. On that, you will point out the here. So you have to connect these all points and sectionize to this. Similarly, the development. So it will be the true shape of the object. Now the development of the surface. So you have to measure, you have to calculate the angle of this. On that basis, sectionize into the 8 part. So A2, H, and the last one is this is the point which will be directly connect to A during the folding. So how we are measuring this distance from this to this? So where is the C? O to C. What is the distance? This. And similarly, it will be at the G point. O to G. And we will connect these points and complete the area. This is the solution of this problem. Hexagonal prism. Any doubt? Or most of the people are sleeping? Or it is very difficult to understand? No, sir, no doubts. Okay, No, no. fine. So the next problem is the hexagonal prism. And this is resting face, the lying on HP on its. So this is resting on this. So we will just move to this. So these points are coming at this position, extending towards down, and similarly from this direction. So this is extended from this. So the top view, and this is the front view.
it is our the ABP 30 degree. It is the problem related to ABP. So this angle will be 30, and what will be this angle? If it is the reference plane, then what is this angle? I am extending to this. What is this? It will be same. This theta 1 or this is theta 2. Yes, the same. It will be same. आप देखो ये यहाँ पे, अच्छा ये बताओ, ये हमने पॉइंट क्यों दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8? क्यों पॉइंट दिए? कुछ पता चल रहा है? देखो कैसे है, इधर बनाते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ है शेप, है ना? इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं नीचे की तरफ, है ना? ये इस तरह की शेप है कुछ, है ना? अब इसको हमने क्या किया था ना, A B C D E F कर दिया था, ठीक है? ये वाला सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 अपर पोर्शन को, वो ही हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, है ना? सेम पॉइंट को, ये ABCD है, हमने यहाँ पे ले लिया है इसको 1 2 3 4 5 6, है ना? नोट द स्टेप लोकेट पॉइंट 1 2 3 5 सेकेंडरी फ्रंट व्यू। अब उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सटेंड किए और इस पॉइंट से जहां जहां इंटरसेक्ट किया उसको एक्सटेंड कर दिए। इसमें जो 4 पॉइंट मिले, सिमिलरली 4 पॉइंट्स वी कैन गेट फ्रॉम दिस। तो ये यहां पे हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसका ट्रू शेप बनाना चाह रहे हैं। है ना? ट्रू शेप यहां बना लेंगे हम लोग इसको, जैसे हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम में देख रहे थे। सेम प्रोसीजर विल बी सेम, नथिंग विल बी डिफरेंट, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग इन द प्रॉब्लम एंड हाउ वी हैव टू ड्रॉ। नाइन 905 का कोई स्टूडेंट है क्या? समृद्धि ठाकरे, सोनाली तिवारी है क्या आपके बैच में कोई? सर Yes, sir, translate है। ये उससे होंगी ना, अच्छा ये सेक्शन एल है ना, तो उससे होंगे, ठीक है। सर शी इज अ ब्रांच स्लाइडिंग स्टूडेंट, हमारे साथ है वो। हाँ ठीक है। सिमिलरली इधर ये पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे साइड व्यू वाले से, इंटरसेक्शन, और ये आपका हो गया डेवलपमेंट ऑफ सेक्शन। इसमें एक बार कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा ना, फिर ड्रॉ करने में इसमें दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है। अब इनको कनेक्ट कर दो जो भी लाइंस है। So similarly you will connect to these lines, so fold from these locations. A solid composed of half cone, a solid composed of a half cone and half hexagonal prism.
तो दो हमारी शेप है ना, एक हेक्सागोनल है और हाफ कौन है, हाफ हेक्सागोनल। सो हाउ टू ड्रॉ इट? तो सेम प्रोसीजर you have to follow and draw the true shape and development of shape. The next problem is draw a semicircle of 100 mm diameter and describe it is a largest circle. अब ये वाला जो हमारा है ABCD, तो जो इसका ये डायमीटर होगा वो कितना होगा? सर सेमी सर्कल के रेडियस, हाँ सेमी सर्किल के रेडियस कितना 50 mm होगा डायमीटर उसका सर्कल। अब ये जो पॉइंट है कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? उन्हीं को हमें ड्रॉ करना है इसमें। इस तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी तो वो आप कर पाओगे? जैसे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो वो है सब उसी से रिलेटेड ही। सर पर मार्क्स तो अच्छे लाइक क्लीन ड्राइंग्स पे मिलेंगे ना, तो टाइम सफिशिएंट उतना कहाँ मिल पाएगा? ठीक है ना, इस बार देंगे है ना, इस बार देंगे, उसका भी थोड़ा सा मतलब ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ड्राइंग और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर पाएंगे ना? हाँ सर, है ना, एक ड्राइंग बना पाओगे और वो उतना ही देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसको सर पेंसिल से लिखना है या पेन से लिखना है? क्या नहीं, वो थोड़ा माइक हट गया था, बताओ। हाँ क्या बोले सर? जो क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव उसको पेंसिल से लिखना है या पेन से लिखना है सर? पेंसिल से लिखते हो तो ज्यादा बेटर है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप उससे पेन से लिखिए ना। अच्छा ओके सर, हाँ। लास्ट टाइम पेंसिल से लिखे थे ना इसलिए। लेकिन जिसने भी पेंसिल से लिखा था बहुत अच्छा लिखा था। आपके सेक्शन की ऑलरेडी मैंने कॉपी चेक कर दी है ना, था सर, मेटा की स्पेशली, है ना। और वाली जो कॉपी है वो दूसरे के पास है, मेरे पास मेटा की कॉपी है, तो वो चेक हो गई है। तो उसमें सर जिसने भी पेंसिल से लिखा है बहुत अच्छा लिखा है। तो सर आज अपलोड करेंगे आप? क्या मार्क्स? हाँ सर। मार्क्स का ऐसा है कि तीनों लोगों को बैठना पड़ेगा, जो अदर फैकल्टी मेंबर्स है ना, उनको उनके साथ बैठ के फिर दिखाएंगे। आईटी वालों का अपलोड हो चुका है सर। यज्ञ सर ने कर दिया है? Yes sir, it was uploaded. नहीं, यज्ञ सर ने नहीं किया है अभी। यस सर, आईटी वालों के मार्क्स आ गए हैं। आईटी वालों के मार्क्स आ गए हैं? अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे दिखा देंगे फिर। Okay sir. सर एक चीज पूछना था, जो असाइनमेंट ड्यू हो जाता है, मतलब मान लीजिए कि 12 तारीख को जाओ सबमिट करना है, बट 13 को सबमिट किया, इन दैट केस टीचर असेसमेंट नंबर नहीं ना कटेगी? नहीं कटेंगे, लेकिन टाइम मतलब जितना पॉसिबल हो जल्दी से जल्दी उतना कर देना। ठीक है, ओके सर। जब तक मेरे पास आएंगे तब तक कोई दिक्कत नहीं है, और दूसरे के पास जाएंगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी एक लास्ट डेट की देंगे हम लोग कि उस डेट में आप सबमिट कर दीजिए। तो जरूरी ये है कि आप टाइमली अपना सबमिट करते रहें, तो वो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, ये भी उसी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है सेम। ये आपके पास क्या वो पीपीटी है क्या?
ये पीपीटी है आपके पास क्या? सर ये वाली नहीं है। कौन सी है? जंक्शन ऑफ सॉलिड तक पूरा है। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप बताना। मुझे लगता है ये वाला सेक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। मैं देख लेता हूँ। हाँ, नेक्स्ट सेशन में इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो। अच्छा, जो आप एक कह रहे थे ना, तो अच्छा ठीक है, आप 15 मिनट बाद आइए, तो जो आपके वो डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। सर ये असाइनमेंट्स मिलेंगे इस वाले टॉपिक के लिए, तो सर पेज तो छोटा पड़ जाएगा सर, A4 साइज। नहीं, उसको क्या है ना, देखो अभी क्या है ना, आप पोर्ट्रेट में बनाते हो ना, है ना, पोर्ट्रेट रखते हो तब बनाते हो ना उसको। पोर्ट्रेट A4 साइज पेपर में बनाते हैं। ये क्या है, ये क्या है? A4 साइज पेपर है। अब जब आप ऐसे कुछ भी ड्रॉ करोगे तो वो पोर्ट्रेट हो नहीं सर, गया। लैंडस्केप में भी किए थे। हाँ, लैंडस्केप में आ जाएगा। नहीं सर, तब भी मतलब लैंडस्केप के लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो बड़े हो जा रहे थे। तो उतना छोटा ड्रॉ करो ना, आ जाएगा। सर मेजरमेंट्स कम कर ले सकते हैं क्या? हाँ, ले सकते हो, रिड्यूसिंग स्केल में ले लो। जैसे 100 mm की उसका डायमीटर दे दिया है और उसमें ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन बट यू हैव टू मेंशन, है ना? ये सर mention कर देंगे। सर RF मेंशन करना पड़ेगा ना? हाँ, वो आप मेंशन कर देना और बोल्ड में मेंशन करना। ऐसा ना हो कि मैंने अभी हाँ किया है और जब दूसरे के पास जाए तो वहां पे मतलब ऐसा क्लियर ही ना हो कि मतलब हाँ आपने रिड्यूसिंग स्केल लिया है। तो रिड्यूसिंग स्केल यू हैव टू मेंशन इन दैट कंडीशन वी विल कंसीडर इट। ओके ओके सर। तो अभी आप 15 मिनट बाद आ रहे हैं या फिर मतलब नहीं आ रहे हैं? सर आज आएंगे सर। और ये आज या आज फिनिश करें, हम अगले वाले में वो वाला आपका कंप्लीट कर देंगे जो रेस्ट बचा हुआ है। मैं ही लूंगा क्लास, है ना? जो आपका लाइन वाला बचा हुआ है वो लाइन वाला पोर्शन अभी एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है? ओके सर। जो आप लोगों ने अभी सर। बताया है वो वाला पोर्शन नहीं आएगा, ठीक है? हाँ बोलो। सर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में मतलब उतना डिफिकल्ट हो रहा है सर, क्योंकि पेपर भी उतना बढ़िया गया था नहीं यूनिट 1 का। सर कैसे डील किया जाए? अच्छा, देखता हूँ मैं तुम्हारा नाम बताओ, तुम नाम बताओ अपना। सुमरन कुमार सर। हाँ, देख रहा हूँ। तुम तो लेट सबमिट किए थे ना थोड़ा सा। यस सर, वो इंटरनेट कनेक्शन का इशू था। तो बढ़िया गया था नहीं सर, तो बहुत खराब एक लगा। सेकंड, अभी मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मार्क्स कितने हैं। सर मेरा भी फोटो शेकी आ गया था सर, बीच में टाइम नहीं मिला, फिर जल्दी जल्दी खींचा, फिर ऐसे करके वो हो गया सर। जाओ थोड़ा सा। बायोमेडिकल का है। सेक्शन एल है ना ये? हाँ, सुमरन कुमार कौन आ गया नया? सर क्या बोले? हेलो, हाँ सर। रोल नंबर क्या है? सर 2112101 सर लास्ट में। 101 सुमरन कुमार। हाँ, तुम्हारा कम तो है। हाँ सर, वो कम। सर 21120095 का देखिए। किसका लास्ट में बताओ क्या है? 95 सराफ करके है ना? शुभांशु ना?
सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। अभी इसमें क्या है ना कि जो जिन्होंने बहुत लेट सबमिट किया है उनका कुछ मार्क डिटेक्ट होना है, और जिसने टाइमली सबमिट किया है उसका उसको बेनिफिट मिलेगा। सर 2-3-4 मिनट के टर्मिनल लेट की वजह से वो बात हमने करी तो थी आपके सर। सीआर ने उस टाइम बात किया था, तो 15 मिनट 20 मिनट के लिए इट इज कंसिडरेबल, ठीक है। ओके सर, ठीक है। लेकिन जिसने 4 घंटे लेट किया है, जैसे ये देखो एक लोग हैं उन्होंने 113 मिनट मतलब 163 मिनट लेट किया है, इट मीन्स 2 आवर 43 मिनट, 3 घंटे बाद सबमिट किया है। सर 5-10 मिनट वाले का तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं, सर वाला कंसिडरेबल है। मार्क्स कितने हैं सर सुभांशु सर आपने? तुम्हारे कितने अच्छे मार्क्स हैं? सर हम ब्रांच लाइडर स्टूडेंट्स का उस दिन वाइवा था। वो तो गलत है। एक्चुअली देखो क्या है ना, आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए था यदि कोई बात थी, और जब उसमें शेड्यूल हमने मतलब उसमें डाला था सेक्शन एल में व्हाट्सएप पे, तो आपको एटलीस्ट बोलना चाहिए था कि सर हम लोगों को इसमें प्रॉब्लम है, तो हम उस टाइम चेंज कर देते। सर बट सर ज्यादा लेट नहीं हुआ, 20-25 मिनट लेट हुआ है सर, ज्यादा उससे ज्यादा नहीं गया, मैक्सिमम 20-25 मिनट लेट हुआ है। सबमिशन में ना यस सर। 30 मिनट तक हमने अदर सेक्शन में बोला है कंसिडरेबल है, और उसके ज्यादा का जो भी टाइम है वो कंसिडरेबल नहीं होगा। यस सर, ज्यादा नहीं, 30 मिनट से तो कम है पक्का, आधे घंटे से तो कम है। हाँ, ये जो श्रुति हैं इन्होंने 2.25 घंटे में सबमिट किया है। Sir, there was some glitch. सर मैंने तो जल्दी में फोटो भी शेयर किया गया था सर, फोटो फिर से अपलोड Sir, I submitted it at just after the 10 or 15 minute late. वो आपका हैंडल लेन दिखा रहा And sir, I है। messaged you even for that matter. आपका जो आपने जब मैसेज किया है ना तब का मैं वो टाइम कंसीडर कर लूंगा। और एक है सृष्टि सिंह, इनका भी काफी लेट है। सुमरन कुमार का मतलब हाँ सर टेंशन का देख लेना सर प्लीज सुमरन सर। कुमार का 31 मिनट लेट दिखा रहा है, बट इट इज कंसिडरेबल, ठीक है। यस सर यस। सर कैन यू चेक सर 21120106? 0106 यस सर। वासुदेव मिश्रा। यस सर। सर एक्चुअली सर वो असाइनमेंट में वो जब आई वाज क्लिकिंग द अच्छे हैं फोटोज तो सर जरा फिल्टर लग गया उस पे सर, जो ब्लू लग रहा, तो आपको लग रहा होगा पेन से बनाया, लेकिन सर वो मैंने पेंसिल से बनाया है, सो प्लीज कंसीडर दैट सर। किसको कौन से वाले को बोल रहे हो? मैंने सर जो असाइनमेंट भेजा था ना, तो सर उस पे सर कैमरे से फोटो क्लिक करते टाइम उस पर ऑटोमेटिक कुछ फिल्टर टाइप का लग गया, तो शायद ब्लू लग रहा हो, तो आपको पेन से ना लगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मैंने पेंसिल से ही बनाया था। ठीक है ये तुम्हारा ना 106 सर मेरा लेट तो नहीं है सर। नाम क्या है? नाम सर बताओ। मेरा चेक कर लेना सर। वासुदेव मिश्रा सर, सेम। तुम्हारा लेट नहीं है, 8-9 मिनट लेट है वो तो ठीक है, तुम्हारे मार्क्स भी अच्छे हैं। थैंक यू सर। सर मेरा चेक कर लेना प्लीज सर। किसका? ये वाला 2118-104 था सर। 104 ना? यस सर। तिरुपति ना? नहीं सर, सर वो IT सेक्शन का है। IT सेक्शन से है। IT सेक्शन का नहीं मेरे पास केवल मेटा का है, मेटा वाले पूछ सकते। सर मार्क्स लेकिन- बता। हाँ मार्क्स अभी मत पूछो, अगली बार पूछ लेना। क्या है ना, जो डिटेक्शन होना है ना वो, और जिसको हमें प्रमोशनल मार्क्स देने हैं वो हम कर देंगे क्लियर, ठीक है। क्योंकि देखो जिसने टाइम पे सबमिट किया है तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीजें नहीं कर पाया होगा, और जिसने बहुत लेट सबमिट किया है तो उसको समय मिला है सफिशिएंट, और किसी के साथ अनफेयर नहीं होना चाहिए। यस मेरा लेट तो नहीं हुआ ना उसमें 0095 सर। 30 मिनट के लिए बोला हमने, कंसिडरेबल है, इतना कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। कुछ लोगों का फाइल, और वो भी स्पेशली आपके CR जो भी हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तो उतना कंसिडर कर ले रहे हैं। लेकिन आगे से ऐसा गलती मत करिएगा, यदि 1 घंटे का है ना तो आप टाइमली सबमिट करिए। जो भी टाइमली सबमिट करेगा ना तो जो प्रमोशनल मार्क्स होगा वो कंसिडरेबल होंगे, है ना। लेकिन यदि आप बहुत लेट कर रहे हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं और कम ही होगा।
और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इस बार कम कर देंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फोर्थ प्रॉब्लम को करने के चक्कर में सेकंड थर्ड भूल ही गए। जबकि सेकंड जो प्रॉब्लम थी, जो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम थी, वो बहुत इजी थी, जिसको किसी ने नहीं लिखा, बहुत कम लोगों ने लिखा है, सब लोग उसको गायब कर गए। और उससे जब हाँ सेकंड सेम का जो एग्जाम होगा उसमें सारा सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा सर पेपर में, वो भी सब्जेक्टिव होगा। एक्चुअली ईडी में जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है इसमें सब्जेक्टिव ही रहता है। अब आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो इसलिए मतलब कुछ नहीं हो पा रहा है, अदरवाइज ये सब सब्जेक्टिव ही रहता है। और कुछ डाउट हो तो बताओ, नहीं तो क्लोज करते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लिखना रहता है सब्जेक्टिव हैं? हेलो, हाँ आ रही है आवाज, बोलो। हेलो, हाँ आवाज आ रही, बोलो। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सब्जेक्टिव में मिनिमम कितना लिखना रहता है? जो पूछा गया है बस उतना। सर हाँ, 3 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हाँ आ रही है ना आवाज, तुम्हारा बता तो दिया मैंने कि जितना सब्जेक्ट जितना पूछा गया है, जो यदि ब्रीफ में पूछा गया है तो आप ब्रीफ में करिए, है ना, डिटेल्स पूछा गया है तो डिटेल्स में करिए, जो जितना पूछा गया है उतना लिखिए। डजेंट मैटर कि वो आधा पन्ने में आ रहा है या 1 पन्ने में आ रहा है, ये तो आपको डिसाइड करना है। Any other query? Some of the students asked message. Hello sir. हाँ सर एक्चुअली पिछले वाले सर ने बोला था कि अगर मेजरमेंट्स करना है, मेजरमेंट्स है ना एनडी भट्ट को देखकर रेफर करो मेजरमेंट्स के लिए, और एनडी भट्ट में है कुछ भी मेजरमेंट्स मेंशन किया हुआ नहीं है। अच्छा, तुम जिसका पूछना चाह रहे हो ना उसका मेरे को भेजना, कौन सा असाइनमेंट नंबर है, तो मैं डिस्कस करता हूँ ये सर के साथ में कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या भेजा है, अब क्या किया है। नहीं सर, मतलब मैं खाली यही पूछ रहा हूँ कि अगर डायग्राम तो पूरा हो गया सर, वो मेजरमेंट्स बताने पड़ते हैं ना। सर ने बोला एनडी भट्ट को देख के रेफर करना, उसमें मेजरमेंट्स नहीं है, तो मैंने ना सारे असाइनमेंट्स में कुछ मेजरमेंट्स मेंशन किया हुआ नहीं है, सिर्फ डायग्राम है। ठीक है, तो जैसा प्रॉब्लम है तो वो आप वैसा ही बना दो उसको। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम दिया, ना ही मैंने देखा है उसको। ठीक है सर, है ना, जो प्रॉब्लम में जो पूछ रहा है ना वो वाला आप लिख दीजिए, या मेजरमेंट के लिए नहीं लिखा होता आप मत दीजिए उसको। 8112 ये 8112 कौन है? हमारे पास तो कोई नहीं है। अच्छा, दूसरे बैच के आई सेक्शन आई के हैं, है ना, 100 श्रेयांशु कुमार। यस सर। श्रेयांशु के तो मार्क्स अच्छे हैं। थैंक यू सर। सर वो असाइनमेंट सारे सही थे सर? कौन सा असाइनमेंट? सर असाइनमेंट 5 सर। असाइनमेंट अभी कोई चेक ही नहीं हुआ है इन रियलिटी। ओके सर। है ना, और जिसने भी नहीं सबमिट किया है तो वो सबमिट कर देना, ठीक है। ओके सर। जिसका गलती से रह गया हो या कुछ भी है तो वो सबमिट कर देना। अब हम 2-4 दिन में उसको डाउनलोड करेंगे सबको, है ना। लेकिन वहाँ हैंडलिंग मतलब जैसे जो हैंडल्ड इन लिखा रहता है ना, तो उसको चेंज मत करना बार बार, अदरवाइज वो उसी में कंसिडरेबल हो जाएगा कि लेट वाले में, ठीक है। जो एक बार सबमिट कर दिया है उसी को रहने देना। तो वहां से हम देख लेंगे। लिखता है सर उसको, हैंडल लिखता है सर, उसको चेंज नहीं करते सर। हाँ, उसको यदि आप जैसे दोबारा से सबमिट कर दिए फाइल चेंज करके, तो वो अब करंट वाली डेट आ जाएगी, टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आपका वो लेट में चला जाएगा। तो जो भी टाइमली सबमिट कर रहा है वो इवैल्यूएशन उसके अकॉर्डिंग ही होगा।
कोशिश यही रहेगी कि किसी के साथ अनफेयर ना हो और जो टाइमली कर रहा है उसे प्रमोशनल मार्क्स मिले। और जो लेट सबमिट कर रहा है तो उसको लेट का जो भी डिडक्शन होगा वो हो जाएगा, लेकिन हाँ असाइनमेंट में मार्क्स जरूर मिल जाएगा, जीरो किसी का नहीं होगा। मैं जो फॉलो करूंगा वो फॉरेन स्टैंडर्ड ही फॉलो करूंगा। लेट सबमिट कर रहे हो तो उसका कुछ मार्क्स जरूर डिटेक्ट हो सकता है, तो इसलिए आप कोशिश ये करें कि जीरो से अच्छा है कि आप कुछ उसमें मार्क्स गेन कर पाए। सर मेरा सिर्फ 4 मिनट लेट हुआ था सर, वो एमसीक्यू का, उसमें मार्क्स डिडक्ट होगा क्या? हाँ होगा, तुम्हारा तो बिल्कुल होगा। पहले ही बोल दिया जब 30 मिनट तक का जो भी है उसका नहीं होगा। 30 मिनट तक बोला था ना। थर्टी मिनट तक किसी का नहीं होगा, ठीक है। Sir, what is good score for this MCQ 1? What is good score for good score? हाँ for MCQ 1 I mean 15 marks। 15 मार्क्स में कितना मार्क्स मतलब रहेगा कि पास? 13 क्या? पासिंग मार्क्स सर। पासिंग मार्क्स इससे डिसाइड नहीं होता। देखो वो जो फाइनल जो होता है ना आपका, उससे डिसाइड होता है। यदि आप उसमें फेल हो तो पूरा फेल हो, हाँ एंड सेम में। और ये जो आपके जो मार्क्स होते हैं वो ओवरऑल ग्रेड को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेड को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फेल और पास इस वाले से डिसाइड नहीं होगा, है ना। ये जो इम्पैक्ट जो MCQ 1, MCQ 2 और जो वाइवा वगैरह होगा वो आपके ग्रेड को स्कोर करेंगे, लेकिन एंड मार्क्स में एंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको पासिंग मार्क्स आपको लाने ही हैं। यदि वो नहीं लाते हैं तो उसमें आप फेल हो सकते हो। यदि आपने इधर भी स्कोर नहीं किया और उधर भी स्कोर नहीं किया तो फिर फेल हो जाओगे। और उसमें जहां तक मुझे पता है वो 3rd and 4th यूनिट ही आएगा, है ना। बाकी एक बार मैं और कंफर्म कर लूंगा कि कितना आता है कंटेंट। तो जो अभी MCQ 1 में और MCQ 2 में निकल जाएगा वो क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें। सर वो ऑफलाइन एग्जाम होगा सर? ऑफलाइन नहीं, अभी तो फिलहाल जो है वो ऑनलाइन ही है सब कुछ। सर NIT और दुर्गापुर वगैरह खुल चुका है सर? जरूर डायरेक्टर सर से बात करिए। सर MCQ 2 का पोर्शन क्या रहेगा सर? पोर्शन बता तो दिया, 2nd यूनिट। अच्छा ओके सर, है ना, 2nd यूनिट रहेगा पूरा। ठीक है, तो आप बंद करें। ओके सर, थैंक यू सर। okay thank you sir Okay, have a nice weekend to all of you. thank you sir Same to you sir. thank you sir थैंक यू।